couple. She is educated till BA, is a teacher by profession and resident of Jallo Park. She is Gravida 2, Para 1 with previous vaginal delivery. Her last childbirth is 3 years back. Her first day of last menstrual period is 15 November 2020, making the expected date of delivery is 21 August 2021, and duration of pregnancy is 12 weeks and 5 days. Her blood group is O positive, and she presented through emergency department of Sir Gangaram Hospital on 9th February 2021 with the presenting complaint of vaginal bleeding for 4 days. She conceived spontaneously in her regular menstrual cycle. She confirmed her pregnancy by urine for pregnancy test at home when she was 1 month overdue. Later on, she confirmed her pregnancy by an ultrasound at private clinic where she was told about single intrauterine pregnancy. However, fetal cardiac activity was not reassured to the patient. She was started tablet folic acid, which she took regularly, and she gives no history of excessive nausea and vomiting, fever, flu, rash, and she gives no history of vaginal leaking and increased frequency of urine and burning micturition. She she gives history of bleeding for the 4 days. She used to soak 1 to 2 homemade pad with the passage of the clot. The bleeding was not associated with the pain abdomen, and she gives no history of trauma and any weight lifting. She gives no history of headache, abdominal pain, any urinary bowel symptoms, and she gives no history of diarrhea, insomnia, palpitation, and intolerance. For that complaint, she visited to nearby clinic where where her blood pressure was checked, which was reassuring according to my patient, and her ultrasound was carried out. She was told about the molar pregnancy, and she was referred to the tertiary care hospital. She gives history of one episode of such bleeding 1 week back, when she had an episode of spotting followed by bleeding. For that complaint, she visited the same private clinic, and she was advised oral medications, and her ultrasound was not carried out at that time, and she was her problem settled with that medications. After that, she visited the emergency department of Sir Gangaram Hospital, where her certain blood investigation and ultrasound was carried out, and she was advised admission. The further plan of management is not being discussed with my patient. uh, Her first pregnancy was 3 years back. It was a booked pregnancy to a private clinic, delivered at term by vaginal delivery, with no at term with no antenatal, intrapartum, and postpartum complication, and the baby was breastfed, vaccinated, of average weight. She had menarche at the age of the 12 when she had regular menstrual cycle of 5 by 28 day with no history of dysmenorrhea, dyspareunia, intermenstrual, and postcoital bleeding. Couple never practice any method of the contraception, and she gives no history of the pap smear done. She gives no history of hypertension, diabetes, ischemic heart disease, asthma, and tuberculosis. Her surgical intervention never done, and she gives no family history of hypertension, diabetes, asthma, and ischemic heart disease. She is non-smoker, non-addicted, with normal sleep and bowel habits, with no drug allergies and blood transfusion. Her husband is a businessman living in our own house, meeting the necessities of life with ease. 25 years lady, sitting comfortably on the bed, well oriented with time, place, and person, having the height of 5 feet and 4 inches, and the weight of 59 kilogram, making the body mass index of 23 kilogram per meter square, having the pulse is 98
98 beats per minute and regular and good volume, and blood pressure is 120 by 70 millimeter of mercury. Respiratory rate is 18 breaths per minute, and she is afebrile. She is pale. There is no clubbing, cholynychia, jaundice, and leukonychia. Orodental hygiene is satisfactory. Thyroid is not enlarged. All the accessible lymph nodes are not palpable. Both the breasts are normal looking with no lump palpable. All four quadrant of the breast. There is normal vesicular breathing with no added sound. The apex between the fifth intercostal space with no added sound, and both first and second half are audible. There is no sacral and pedal edema, and with no spine deformity. Abdomen is normal looking, moving with the respiration. Umbilicus is normal looking with there is no stria, scar mark, prominent veins or visible pulsation. Abdomen is soft, non-tender. Her symphysis height is 18 centimeter. And vulva is normal looking. On sterile speculum examination, cervix is normal looking with mild bleeding. And on bimanual examination, uterus is 18 weeks size, and bilateral fornices are clear. Summarize your case. 25 years, gravida 2, para 1, previous vaginal delivery. ये 25 years old है या 25 years old है? Madam, 25. 25, ठीक है. 25 years, gravida 2, para 1, previous vaginal delivery at 12 weeks and 5 days with the vaginal bleeding for 4 days, and she is pale, and blood pressure is 120 by 70 millimeter of mercury. Her symphysis height, abdomen is soft, non-tender. Symphysis height is 18 centimeter, and on sterile speculum examination, cervix is normal looking with mild bleeding, and bimanual examination, uterus is 18 week size, and bilateral fornices are clear. तो आपका इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना और स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल मेक अ डायग्नोसिस ऑफ मॉडल प्रेगनेंसी. कोई सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की इसमें गुंजाइश बनती है? Madam, no, madam, it is a straightforward molar pregnancy because she gives history of vaginal bleeding, and that was not associated with the pain. And on abdominal examination, जो है वो large for gestation age भी था, and it could be. I suppose this patient may not have an ultrasound report with her, or she doesn't know about the diagnosis, because this patient probably is a literate person and she knows the diagnosis herself. Yes. So, what else can be the differential diagnosis in this case if she was not having any report with her, ultrasound report with her? Madam, it could be incomplete miscarriage because she presented to me with the gestational age of 12 weeks with the vaginal bleeding that was not associated with the pain, and the other differential. अब इसका भी differential diagnosis बनेगा, एक तो जब आप history लेके खत्म करते हो तो तब, और एक वो है जो differential आपका बनेगा, rather it will narrow down your diagnosis list के जो कि examination के बाद बनेगा. तो if we base exclusively on your history criteria, तो उसमें एक तो आपने incomplete abortion की बात कर दी. What else? Madam, the other differential could be the threatened miscarriage, and the any local cause, madam. And madam, it could be, but it is less likely due to the madam low-lying placenta कह सकती हैं? low-lying placenta तो नहीं कह सकते, ठीक है, वो वाली चीज थोड़ी सी unlikely हो जाती है, because initially the placenta develops all around that gestational sac.
जी और जी उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जहाँ पे प्लेसेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है वहां तक वो रिस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो दैट विल बी अ बिट अनलाइकली, मतलब वो थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ द ट्रैक एक डायग्नोसिस बन जाता है। और क्या इसमें हो सकता है? मैडम दैट सेट हिस्ट्री के बेस पे तो यही हो सकता है। मैडम एग्जामिनेशन की बेस Did पे you जो not think about the possibility of molar on history alone? इस केस में क्या मोलर की कोई गुंजाइश नहीं बनती अगर पेशेंट के पास अल्ट्रासाउंड नहीं है और यस आप मैडम मोलर डायग्नोसिस, मोलर यस यस इट कुड बी दैट विल बी वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस यस यस जो यस कि यस हिस्ट्री के ऊपर बनेगा। जी मैडम बनेगा अभी हम उसको उसके बाद तो फिर then after doing the examination, as her duration of pregnancy is 12 plus weeks, while her जी symphysiofundal height is 18 centimeter. जी जी So what can be the differential diagnosis now? Because suppose a patient comes to you or you encounter a patient in exam where the patient doesn't have any report or the patient is an illiterate person, she doesn't know what is written in the report even if she is having that report with her. तो उस सूरत में when the fundal height is larger than the actual duration of the pregnancy, then what can be the differential diagnosis in that case? मैडम इट कुड बी द mistaken dates Hmm. that I will confirm with the dating scan. That the other possibility it could be the twin pregnancy, Hmm. and the other it could be the molar pregnancy, and it could be the pregnancy along with fibroid Hmm. uterus. Yes. Some That's it. uterine or ovarian masses as well. Masses. Yes, That yes, can yes. also raise that suspicion. And sometimes even when you are examining the patient with a full bladder, तो उसमें भी 2 weeks की discrepancy आ जाती है, but there is discrepancy of 6 weeks. तो इसमें आपको दूसरी फिर जो है वो options पे जाना पड़ता है. Now after now coming back to this patient again, कि इसने she is basically a diagnosed case of molar pregnancy as on ultrasound report. तो इसमें अब आपकी जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, एज शी इज करंटली ऑन 13 वीक्स ऑलमोस्ट, और इसके साथ इसकी ये वाले सिम्टम एंड मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोस्ड ऑन अल्ट्रासाउंड. सो हाउ यू विल प्रोसीड ऑन विद दिस केस नाउ? ओके मैडम मैं इन्वेस्टिगेशंस बताऊं कि क्या क्या कराऊंगी इसमें. डेफिनेटली फर्स्ट कम यस टू इन्वेस्टिगेशन. अब यस वो यस मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है. जी जी मैडम. इन्वेस्टिगेशन को तो हमने अभी टच नहीं किया ना, सिर्फ जी जी अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड. जी 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 मैडम आई नीड ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर. अब आई नीड कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट फॉर हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर डेसीलीटर. इसके साथ साथ इसकी रिपोर्ट भी बताते जाइए क्योंकि वो आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो आपने जी देखी पेशेंट की रिपोर्ट्स, तो वो उनके रिजल्ट्स भी बताते जाएं, टेस्ट क्या करवाना है और उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं. मैडम ब्लड ग्रुप वाज ऑल पॉजिटिव एंड अच्छा, कंप्लीट. एक चीज यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी. जो जी आपने स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया वो उसका मकसद क्या था? जस्ट टू नो द लोकल कॉज और समथिंग एल्स? मैडम जस्ट टू नो द लोकल कॉज and sometime What in the other case. information you can gain while doing speculum examination? मैडम इन द केस ऑफ द इनकम्प्लीट मिसकैरेज तो उसमें भी ऑस ओपन होती है और प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन So आ that रहे you होते हैं. can see on speculum यस examination. मैडम यस मैडम. And the patient is pale looking while her pulse is 98 per minute. So do you think this is a right correlation? Madam, she was mildly pale. Her hemoglobin was 10, 10 actually. Pale, mild pale का क्या मतलब है? Mildly pale का क्या मतलब है? How you can assess clinically that patient is mildly pale? No, madam. So it is right to use the word pale only. Okay. ठीक है ना? Patient is pale looking, that's all. जी और मैडम. क्योंकि इसकी जो पल्स रेट है दैट इज क्वाइट नॉर्मल एज रिगार्ड टू प्रेगनेंसी चेंजेस, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज्यादा कोई टैकीकार्डिया ड्यू टू स्वेयर एनीमिया वाली चीज हो. जी और मैडम. बाकी जो आपने एक चीज जो हिस्ट्री में आपने पूछी थी, वेट लिफ्टिंग का आपने बड़े उसमें जिक्र किया, तो वेट लिफ्टिंग क्या इसकी वजह बन सकती है वेजाइनल ब्लीडिंग की?
if you are asking that question as regard to the cause of her problem. तो वेट लिफ्टिंग से क्या मतलब था? ट्रॉमा तो चलो वी अंडरस्टैंड, बट व्हाट वाज मेंट बाय वेट लिफ्टिंग? मैडम ये मैंने इस उसमें पूछा था कि लाइक लो लाइंग प्लेसेंटा ना, लेकिन इतनी अर्ली गेस्टेशन पे ये नहीं पूछना चाहिए था। दैट कैन नॉट बी द रीजन। तो वेट लिफ्टिंग का, और इसका मतलब है आपके ज़हन में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं था? नहीं था, हाँ तो वो जी। एक अननेसेसरी क्वेश्चन था। जी मैडम। इंसोम्निया से क्या मुराद है आपकी? मतलब उस सवाल का क्या ताल्लुक है फॉर द केस एवेल्युएशन? Madam, the molar pregnancies can present with the hyperthyroidism. That's why I asked for the palpitation, insomnia, and facial flushing to the patient to exclude the any symptom if she have. So you asked this question after knowing the report of ultrasound. ऐसा ही है क्या? मैडम एक्चुअली पेशेंट थी, एजुकेटेड थी, एंड शी टोल्ड मी दैट उसको कंप्लीट मोल बताया, लाइक उसने तो मुझे जी, अपना वही पूरा वही मैं डायग्नोसिस। बात कर रही हूँ ना कि आफ्टर नोइंग द रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड यू आस्क दीज क्वेश्चंस, ऐसा ही है ना? यस 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 ओके, यस अब हम आते हैं वापस अब इसकी एवेल्युएशन पे। तो इसके टेस्ट में ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर, क्या इसकी रिपोर्ट थी? यस मैडम, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, व्हाट सीबीसी एल्स? और सीबीसी में मैडम हीमोग्लोबिन वाज 10 ग्राम पर डेसीलीटर एंड टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट्स वर नॉर्मल। नॉर्मल की वैसे रेंज भी पता होनी चाहिए, टीएलसी कितना था? मैडम नॉर्मल कोई चीज नहीं होती, जो नॉन प्रेग्नेंट में नॉर्मल चीज है वो बाद दफा नॉर्मल हो जाती है इन प्रेगनेंसी, और वाइस वर्सा। तो इसलिए टीएलसी काउंट कितना था इसमें? मैडम टीएलसी काउंट वाज 10 एंड 260 वाज प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे। And madam, fasting blood sugar level was 80 milligram per deciliter. And in complete urine examination, there was 1 to 2 pus cells, and the proteins and sugars were negative, and the hepatitis B surface antigen and NTHC was negative. ठीक है। Madam, her beta HCG was done, which was 1 lakh international unit per liter, and यानी 100,000 हो गया? yes madam, 100,000. ठीक है। And madam, her liver function test for the bilirubin in milligram per deciliter and ALT AST in international unit per liter, madam, that was in normal range, 0.5 bilirubin tha और 32 ALT tha. And madam, renal function test for serum urea and the creatinine in milligram per deciliter, that was also normal, and the chest x-ray was normal, and the ECG was done, which was normal. क्या चीज करवाई थी? ईसीजी? यस मैडम, ECG भी नॉर्मल थी। अच्छा, चेस्ट एक्सरे भी नॉर्मल था और ईसीजी भी नॉर्मल थी। और इसमें आपके ख्याल में ये इसका जो इसी जो हुई इसकी एक होनी चाहिए थी? मैडम नो मैडम, madam, it could be done if patient gives history of any cardiac event, but my patient has no such history, तो उसकी नहीं कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो मतलब लाइक चेस्ट एक्सरे नॉर्मल, LFTs RFTs तो हम मेटास्टेसिस के लिए और चेस्ट एक्सरे उसके लिए देख रहे हैं, तो इस वजह से। ठीक है, और LFTs के बारे में क्या ख्याल है? मैडम LFTs and RFTs, madam, it should be done in a patient having the molar pregnancy. I will have a baseline of LFTs and RFTs in any case if I need chemotherapy. तो मुझे एक मेरे पास baseline होएगा, and also it gives me clue about the any metastasis of metastasis. In case of any metastasis, it will be help me out, so that I will have the baseline LFTs and RFTs. क्या कंप्लीट मोल में मेटास्टेसिस हो सकते हैं?
No, madam, it is less likely. It is a pre-malignant condition. If it goes to malignancy, तो उसमें हो सकते हैं, It is a लेकिन pre-malignant condition. What do you mean by that? It is a pre-malignant condition. Is every mole a pre-malignant condition? No, madam. No, madam. 90% of cases are cured with a single suction and evacuation. और बाकी 10% को क्या होता है? बाकी 10 मैडम कंप्लीट मोल्ड में तो 15% रिस्क ऑफ इन्वेसिव एंड इन्वेसिव मोल एंड रिक्वायरिंग ऑफ द कीमोथेरेपी होती है सिर्फ 50% में, बाकी 90% तो वो सक्शन इवैक्यूएशन से क्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। अब हाउ यू विल स्कोर दिस पेशेंट अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट इन दिस केस। अभी हम मैनेजमेंट की तरफ बाद में आते हैं। इसकी सारी रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। डू यू थिंक देयर इज नीड ऑफ एनी अदर इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस? Madam, I need abdominal pelvic scan for the presence of the molar tissue, any adnexal pathology. So you will like to repeat the ultrasound report? नहीं मैडम, जो ऑलरेडी है वही मैं मांग रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो इसकी रिपोर्ट पे क्या था? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे क्या था? मैडम उसमें कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी दी हुई थी, कंप्लीट मोल दिया हुआ था और कोई फीटल टिश्यू नहीं था और कोई एडिनेक्सल। सिर्फ ये रिपोर्ट थी कि कंप्लीट मोल है। हाँ जी, हाँ जी। Now she is having complete mole with beta ECG 100,000 and all the other factors present in her history. How you will score her? इसको categorize आप कैसे करोगे? मैडम ये तो सिंपल मोलर प्रेगनेंसी है, लाइक वो स्कोरिंग सिस्टम मैं रिस्क स्कोरिंग के हिसाब से बात कर रही हूँ। आप इसको जो अगर रिस्क स्कोरिंग के हिसाब से अगर हमने इसको क्लासिफाई करना है तो इसका रिस्क स्कोर कितना है? Do you know the classification according to the risk scoring? मैडम रिस्क स्कोरिंग क्लासिफिकेशन जो मैडम इट इज less than 40 years or previous there will be metastasis भी नहीं है मैडम, it is low risk. लो रिस्क। नॉर्मल डिलीवरी को 2 साल हो गए, सॉरी 3 साल हो गए, तो उसमें उसको आप कितना रिस्क दोगे इस एक फैक्टर को? मैडम उसको 4 और बाकी फैक्टर्स में से नहीं 4 इसको कैसे दोगे? मैडम क्योंकि लेस देन 4 month is 0 score, 4 to 6 is 1 score, 7 to 12 is 2 score and 4 score is more than 12 month. ठीक है, तो बाकी जो है बाकी फैक्टर्स में से कोई ऐसा है हाई रिस्क स्कोर? व्हाट अबाउट द बीटा ईसीजी लेवल्स? इसका कितना रिस्क स्कोर होगा? 100,000 है। 100,000 है, यस मैडम, इसका भी 4 होएगा। तो कितना होगा फिर? मैडम अगर एक पेशेंट, मैंने आपसे एक बात क्लियर पूछनी थी कि अगर एक पेशेंट फॉर एग्जांपल जैसे ये आई है हमारे पास 12 वीक्स पे मोलर प्रेगनेंसी के साथ आई है, तो ये हम इसकी फर्स्ट उस पे ही रिस्क स्कोरिंग कर लेंगे फॉर द कीमोथेरेपी, या फिर जब इसकी सक्शन इवैक्यूएशन हो जाएगी ट्रीटमेंट से अगर बीटा नॉर्मल आ जाता है? उसमें ये है कि देखो हमें बेस्ड ऑन हिस्ट्री और बीटा ईसीजी रिपोर्ट और ये सारा कुछ और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह उस पे तो चलो कंप्लीट मोड है, तो उस पे हमने रिस्क स्कोरिंग इनकी पहले से करनी है। अब ये रिस्क स्कोरिंग के हिसाब से होता है कि किस में कितने प्रोग्रेशन के चांसेस हैं टू ऑनवर्ड कोरियोकार्सिनोमा, और उसके हिसाब से फिर हम ये डिसाइड करते हैं। अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कीमोथेरेपी पे नहीं डालते, बट वी हैव असाइंड अ रिस्क स्कोर टू दिस पेशेंट, और इसके अलावा जो है वो हम इसको उसके बाद जो इसका इवैक्यूएशन करेंगे और उसका फिर जो टिश्यू हिस्टोपैथोलॉजी होगी और उसके बाद फिर जो उसका फॉलो अप होगा, दैट विल बेसिकली डिटरमिन द नीड फॉर कीमोथेरेपी। तो इसलिए जो है वो इसको हमने रिस्क स्कोर जरूर देना है, बट वी हैव टू रिलाई मोर ऑन द फॉलो अप्स। The speed of lowering down that normalization of the beta ECG levels
इन हाउ मच टाइम। तो वो एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा टू डिसाइड अबाउट द स्टार्ट ऑफ कीमोथेरेपी और नॉट। लेकिन हमने उसको एक रिस्क स्कोर असाइन कर दिया कि लेस देन 6 है तो वो लो रिस्क होगा, मोर देन 7 है तो वो हाई रिस्क में हो जाएगा। तो हाई जी रिस्क में प्रोग्रेशन के चांसेस ज्यादा हैं, सो देयर ज्यादा विल है। बी नीड फॉर स्ट्रिक्ट फॉलो अप इन दैट केस। हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी रिस्क स्कोर के मुताबिक कीमोथेरेपी नहीं देंगे, अगरचे हमें पता है कि हाई रिस्क जो जिसका हाई रिस्क स्कोर है उसमें नीड फॉर कीमोथेरेपी इज मोर। आर यू जी क्लियर? मैडम, यस मैडम, यस मैडम। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। अब इसमें इसका स्कोर आपने फिर फाइनली क्या किया? मैडम अगर इस तरह से मैं अपनी इस का करूं तो 4, बिकॉज इसका प्रीवियस प्रेगनेंसी लास्ट 3 years है एंड प्रीवियस टर्म प्रेगनेंसी है, तो इट विल गिव, आई विल गिव 2 score for that, and her beta HCD is 1 lakh, so I will give the 4 score, and the next मैडम जो मोलर का साइज होएगा, क्योंकि वो 18 वीक साइज था, तो लाइक उसको मैं इसमें लेके आऊंगी, क्योंकि उन्होंने ट्यूमर साइज वहां बताया हुआ है गाइडलाइंस में, तो ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मोर देन 5 सेंटीमीटर शुड बी उसको 2 स्कोर देना है, तो देन टोटल उसके कितना बना? अकॉर्डिंग मैडम टोटल कितना बना? इट्स 12। सो शी इज अ हाई रिस्क केस। ठीक है, जी अब आपने इसको ये एक स्कोर असाइन कर दिया, अब आप इसको आगे कैसे अब चलेंगे? नाउ यू हैव कंप्लीटेड विद द इन्वेस्टिगेशंस, ऑल इन्वेस्टिगेशंस, हाउ यू विल प्रोसीड ऑन? Madam, I will counsel my patient about the diagnosis that she is having a molar pregnancy, and the risk of the malignancy is 15%, and I will reassure my patient that 90% cure rate with the evacuation and curettage only, and I will counsel patient about the need of the suction evacuation to treat the disease, and the further need of the follow-up with the beta HCG report, and she may need the follow-up for the next 6 months. And I will optimize her hemoglobin, but I will transfuse her 1 unit of packed cell volume, and my target. एक मिनट, इसमें हीमोग्लोबिन आपने बताई थी 10 ग्राम, तो 10 ग्राम हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको किसी और वर्क, ये एनीमिक है या नहीं है? 10 ग्राम पे आप क्या इस पे मतलब बताएंगे, इसमें एनीमिया है या नहीं है? मैडम इसमें एनीमिया, because I am planning suction evacuation and there is नहीं, risk वो of बात की bleeding. बात है, एनीमिया है या नहीं है? हीमोग्लोबिन is 10, is she anemic or not? Madam, she is anemic because So do you need to have more workup about the anemia evaluation? yes So madam, far she sorry. is not bleeding that aggressively कि उसमें वो anemia की वजह बन सके. So probably she was having baseline anemia already. So how you will evaluate about her anemia? Madam, I will get her red blood cell indices and the peripheral smear, and जो on आपने the नहीं बताए और ना ही आपने पूछे. मैडम वो मैंने रिपोर्ट देखी थी, सॉरी मैं ये मिस कर दिया मैडम, क्योंकि उसमें hemoglobin 10 पे you definitely need to evaluate for anemia. ठीक जी है. मैडम, जी मैडम, मैडम ऑल This indices is were, indices और क्या? madam our red blood cell indices and the peripheral smear. Madam red blood cell indices पे ना इसके हुए थे, उसमें सारे indices mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin and hemoglobin concentration all were low. serum ferritin इसका नहीं हुआ था. then So you need that also. yes madam. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. ठीक है, सपोज सीरम फेरिटिन भी इसका है, सपोज 20 आ गया, और बाकी सारे the peripheral smear picture and the RBC's indices goes into favor of iron deficiency anemia. So how you will proceed on? Now we have to plan for the final management of this case. Yes, so madam. how you will plan onward? अब क्या इसमें सक्शन इवैक्यूएशन के लिए आपने बता दिया कि आपने पेशेंट को काउंसिल कर दिया? यस मैडम. सक्शन इवैक्यूएशन के लिए जब आप पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं तो उसको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या देते हैं पेशेंट को? व्हाट इज इंक्लूडेड इन द काउंसलिंग?
Madam, I will counsel the patient that there are certain risks associated with the evacuation, that is in the form of the bleeding, perforation, and she may need multiple transfusion, and the anesthesia. I will explain the anesthesia like related risk. Hmm. And then I will proceed. Then I will correct her anemia by transfusing 1 unit of the Paxil, and I will explain the procedure to my patient. आप इसको And blood ही क्यों लगाओगे? What are the other choices for treating anemia? इसमें hemoglobin 10 है, तो इसमें blood लगाने को आप कैसे justify करोगे? Madam, Maybe I agree with your decision, but how you will justify that blood transfusion? Madam, my patient is having complete mole, and I am planning the suction evacuation. I will keep my patient hemoglobin more than 11 gram per deciliter by transfusing 1 Paxil unit, because there is a risk of the bleeding during suction evacuation. And I will arrange the other 4 unit of blood before going to the suction evacuation, because there is a risk of bleeding and in anemia, if anemia is not corrected, even during evacuation and curettage, if the patient start bleeding, we may lose the patient in minutes. That's why my plan is to keep the hemoglobin more than So 11 gram per deciliter. there is high risk of hemorrhage during this procedure. Yes, And madam. as the patient is anemic, so you will not rely on other methods to optimize our hemoglobin. So the only method left is blood transfusion, as well as keeping the arranged blood standby. मतलब जो आपने arrange करके रखना है, कम से कम 3-4 blood वो तो जरूरी होंगे. But you have, as a baseline, you have to transfuse this patient to optimize our hemoglobin. आप दूसरे methods पे rely इस वक्त नहीं करोगे, because evacuation is needed right now, not Yes, after madam. 2 weeks. After 2 weeks. तो Yes, इसको madam. आपने इस तरह से justify करना है. ठीक जी, है, ब्लड madam. आपने 1 यूनिट ब्लड लगाया. Yes, madam. ठीक है. फिर उसके बाद Madam, I will explain the procedure to my patient and take the written informed consent. I will get the anesthesia evaluation. I will do the pre-op preparations. I will arrange 4 units of the blood, and I will take the high risk consent, and I will keep her patient NPO from the midnight, and I will shift the patient to the operation theater in the morning. And after the administration of the anesthesia, I will do the bimanual examination to reconfirm my findings, and then I will pass the suction cannula and attach the suction tube suppose os is tightly closed. Madam, if the os is tightly closed, I will dilate the cervix with the Hager dilators first. Then I will evacuate the molar tissue. Once the evacuation is completed. Can you prime the cervix with some agent? Madam, the guideline recommends, if there is any need of cervical ripening, then the ripening should be at just before the evacuation. उसमें prolonged ripening recommended. Right on the table or sometimes before the procedure? Madam, वो कहते हैं कि preparation of cervix should be immediate period to the evacuation is safe. बिकॉज उससे पहले नहीं आपने करनी होती, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हो सकता है कि कुछ मायोमीट्रियम में सेल्स वगैरह चले जाएं, इस तरह से एम्बोलाइजेशन का रिस्क होता है. जी मैडम. ठीक है, चलें. उसके बाद फिर अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन करो. 18 week size uterus, where should be the cannula? तो आप सक्शन कैनुला आप डालेंगे, from where you will start sucking this molar tissue? मैडम, फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी. वो तो है, यूट्राइन कैविटी में ही आपने जाना है, और तो कहीं जाना भी नहीं है. लेकिन आपका कैनुला इनिशियली कहाँ पे होना चाहिए? मैडम, ये मुझे बता दें.
यस मैडम, आई डन दिस प्रोसीजर, लेकिन लाइक उसमें यूट्रस का साइज थोड़ा सा छोटा था, 14 वीक्स था, और उसमें तो बस 18 वीक्स भी कोई ऐसा बहुत बड़ा तो नहीं है, ये तो 36 वीक साइज यूट्रस भी होती है बाद दफा। जी जी। तो फिर कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सक्शनिंग? कोई और भी सॉरी। आंसर कर सकता है इसको? हम सक्शन कैनुला कहाँ पे रखते हैं इनिशियली, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर? मैडम इसमें आपने There is an answer that just above the internal os. Yes, you will start from the lowest part of the uterus. ठीक है, आपने उसकी कैविटी में ऊपर 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 नहीं जाना, क्योंकि जब आप सक्शन करते हैं आपका जो कैनुला है वो बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर से, यानी बिल्कुल जो उसके प्रोडक्ट्स हैं सारे यूट्रस के अंदर, उसके बिल्कुल लोएस्ट पार्ट से आप उसको सक्शन शुरू करते हैं। अगर अंदर आप जाओगे तो देयर विल बी एक्सेसिव हेमरेज एंड देयर इज नो फन इन दैट, क्योंकि उसमें आप अननेसेसरी एक इंटरवेंशन कर रहे हो जो कि आसानी से जैसे जैसे सक्शन होती जाएगी यूट्रस का साइज वैसे वैसे कम होता जाएगा। The rule applies, same rule applies when even when the uterus is larger than that. बाद दफा यूट्रस टर्म की उसकी फंडल हाइट होती है, तो उसमें भी आपने यही करना होता है। तो उसको हमेशा सबसे निचले हिस्से में रख के फिर आप सक्शनिंग शुरू करते हैं। इसमें सपोज आपने इसकी सर्वाइकल राइपनिंग नहीं की, लेकिन आप क्या ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर can you take help of any other drug to keep the uterus contracted, or there is no need of it? Madam, before complete evacuation, the syntocinon is not recommended because of the risk of dissemination. No, I'm talking about during the procedure. During the procedure, the single dose of the ergometrine it can be used if provided the blood pressure is normal. Ergometrin देते हैं? जी मैडम, वो दे सकते हैं अगर उसको हैवी ब्लीडिंग होती है और अगर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। नहीं, मैं तो प्रोफाइलेक्टिक कह रही हूँ ना, वो तो हैवी ब्लीडिंग में तो फिर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। प्रोफाइलेक्टिकली टू कीप द यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड, इज मेथर्जिन द सेफ चॉइस? नो मैडम। फिर और क्या होता है? मैडम मीजोप्रोस्टोल भी नहीं, और क्या कर सकते हैं हम? मीजोप्रोस्टोल इज अ चॉइस जब हैवी ब्लीडिंग अगर फर्स्ट किया होना शुरू हो जाती है तो देन इट्स अ चॉइस, लेकिन क्या इसमें प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे जरूरत है? मैडम इसमें ट्रांसामीन लगा सकते हैं? ट्रांसामीन? उससे यूट्रस कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी? नहीं यूट्रस नहीं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैडम आप बता दें। यूट्रस के परफोरेशन के भी चांसेस तो हैं ना, तो हम चाहते हैं कि इसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड रहे, तो इस देयर इज अ रोल ऑफ एनी अदर ड्रग के जिसमें इससे हम हेल्प कर सकें? मैडम सिंटोसिनोन तो तब देनी है जब कैविटी पूरी वो हो जाएगी एम्प्टी। उससे पहले नहीं हम दे सकते? मैडम उससे पहले वो यही कहते हैं कि उसमें रिस्क होता है। यूजुअली जब तक ब्लीडिंग ज्यादा ना हो हमें जरूरत नहीं होती किसी भी ऐसी ड्रग की, नेदर मेथर्जिन नॉर सिंटोसिनॉन, सिर्फ उस सूरत में जबकि हमारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस इज अबाउट टू कंप्लीट एंड देयर इज रिस्क ऑफ परफोरेशन एंड इफ द ब्लीडिंग स्टार्ट्स हैवीली, तो सिर्फ उस सूरत में हम उसको देते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। हम प्रोफाइलेक्टिकली पहले से सिंटोसिनॉन भी नहीं देते, मेथर्जिन भी नहीं देते, माइसोप्रोस्टोल हम दे सकते हैं अगर सर्वाइकल राइपनिंग की जरूरत हो तो। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग अब हैवी हो रही है एंड द प्रोसीजर इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड और उसमें यूट्रस जाहिर है सॉफ्ट तो इसमें होती ही है, उस सूरत में फिर आप उसको सिंटोसिनॉन दे सकते, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें हमने प्रोफाइलेक्सिस देना है या नहीं देना। That is basically the decision is individualized according to the status of the patient. ठीक है, but there can be a role in cases of heavy bleeding. ठीक है, चलो जी आगे चलो। अब evacuation complete हो गई, you have done the evacuation, complete evacuation आपने इसकी कर ली, what else? अब उसके बाद आप क्या करेंगे?
Madam, I will shift my patient to the post recovery room, and I will send the samples for the histopathology, and I will give her the post-op care. Then after that, after 48 hours, I will repeat the beta HCG report, and then I will follow up with my patient with 2 weekly beta HCG till the 8 weeks. 100,000 है इसका baseline beta HCG. Baseline beta HCG is 100,000. एक question है कि what about methergine in heavy bleeding? Yes, you can give if the patient condition कोई ऐसी contraindication नहीं है तो. जी. Baseline beta HCG is 100,000. So you will go for beta HCG levels after every 2 weeks or more frequently. Madam, weekly. Weekly. And another opinion? Yes. बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है वीकली और फोर्टनाइटली? अच्छा, और ये कब तक हम कराएंगे? Madam, usually it returns to the normal after 8 weeks, and if it takes more than 8 weeks, then तब तक कराते जाएंगे जब तक normal हो जाता. Once it gets normal, then on the monthly basis after the normalization of beta HCG till the 6 months. अच्छा, इसमें चूंकि बेसलाइन इसमें बहुत डिफरेंट ओपिनियंस आ रही हैं, ज्यादातर की ये है कि फोर्टनाइटली हम इसमें करवाएंगे. तो इसमें बेसिकली एज द बेसलाइन बीटा HCG इज क्वाइट हाई, so it is always a safe option to go for weekly follow up in this case कि हम इसमें बीटा HCG लेवल जो है वो वीकली करवाएं, क्योंकि ये वो पेशेंट है जो हाई रिस्क में आ गया, जो जिसको हमने रिस्क स्कोर जो है वो ऑलरेडी हाई रिस्क कैटेगरी में इसको डाल दिया, एंड हाई रिस्क कैटेगरी हैज मोर चांसेस टू बी कन्वर्टेड टू कोरियोकार्सिनोमा. सो वी विल गो फॉर वीकली बीटा HCG लेवल्स इन दिस केस. ठीक है जी मैडम. मैडम उसके बाद से इसमें हमने वीकली बीटा HCG लेवल करवाने हैं टिल व्हाट टाइम पीरियड? टिल हाउ मच टाइम पीरियड? टिल द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द बीटा HCG. And that normalization should be safely be expected in how much time period? 8 weeks. Yeah, 2 months. 2 months, ठीक है. If it takes long, normally, if there are no conversion to there is no conversion to the choriocarcinoma, then it should come back to the normal baseline levels within 8 weeks. और ज्यादा इसको precisely अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि within the 56 days of after the evacuation. Yes, madam. 56 days में that shows the low probability of being converted into choriocarcinoma. अगर ये levels इस time period में normal हो जाते हैं तो अब suppose बेसिकली इसमें एक और चीज होती है कि within 3 weeks time period 10% से नीचे चले जाएंगे, ड्रॉप कर जाने चाहिए, लेकिन ओवरऑल ये 8 वीक्स का रफली टाइम पीरियड बन जाता है. अब इसमें बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, मतलब योर एग्जामिनर कैन टेक यू इनटू एनी डायरेक्शन कि ये नॉर्मल हो गया, उसके बाद जाहिर है एज शी इज पैरा 1 and she has to plan for the next delivery and when it should be planned and what about the family planning choices. लेकिन इसमें जो चीज है कि इसमें आप जब बीटा HCG लेवल्स करवा रहे हैं, सपोज आफ्टर 2-3 लेवल्स इट अगेन स्टार्ट राइजिंग, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस उस सूरत में क्या होगा? और पेशेंट को आपने कॉन्ट्रासेप्शन के नॉर्मलाइजेशन के बाद बतानी है, राइट नाउ आफ्टर द इवैक्यूएशन कॉन्ट्रासेप्शन क्या बताओगे? Yes, madam. I will ask my patient to. I will counsel my patient to have a contraception till the 6 month after the normalization of the beta HCG. नहीं, अभी मैं वही सवाल कर रही हूँ. the barrier method. मैं वही सवाल कर रही हूँ कि अभी जैसे evacuation के बाद the patient goes home, then how you can be sure that she will be not be pregnant again? ये क्या surety है कोई? Without using any contraceptive,
अभी इसकी नॉर्मलाइजेशन में तो 8 हफ्ते लगेंगे जो एक्सपेक्टेड है। यस मैम, जी तो मैडम। फिर हम इसको क्या अभी से कॉन्ट्रासेप्शन का नहीं मैडम बताएंगे? देंगे तो फिर क्या अभी उसको बताएंगे? मैडम उसको आई विल काउंसल अबाउट द बैरियर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ और लाइक उसको कहेंगे कि इवन जो है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 6, अगर सिंपल मोल भी है तो आपने नॉर्मलाइजेशन के बाद भी 6 मंथ्स की कॉन्ट्रासेप्शन देनी होती है। और जी, ठीक है, तो और उसको कॉन्ट्रासेप्शन हमने अभी से बता के उसको घर बतानी है। भेजना है। जी जी ये सारा कुछ हम करके भेजेंगे, हम उसके नॉर्मलाइजेशन का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। जी, ठीक तो है अब जो है, अब इसमें सपोज कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि इसके 2 लेवल तो नॉर्मल आ गए, उसके बाद दोबारा से रेज होना शुरू हो गया, यानी कोई आप यूं समझ लें कि 3 वीक्स आफ्टर द इवैक्यूएशन द लेवल स्टार्ट राइजिंग अगेन, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? मैडम, आई विल टेक द हिस्ट्री एंड आई इसमें विल एक मिनट स्टॉप करें, इसमें एक आंसर आया है कि ऑल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर ओके ओनली व्हेन द बीटा एसीजी इज नॉर्मलाइज्ड। अगर चूंकि इसके बेसलाइन बीटा एसीजी लेवल्स बहुत हाई हैं, तो इस वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव स्पेशली द कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट दैट सेफ, बिकॉज उसके साथ हमारी जो फॉलो अप है उसमें अफेक्ट हो सकता है। दो गाइडलाइन से सो कि आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसके लेवल की नॉर्मल एज इट इज कंटेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ओनली थेरेपीज कैन बी एक्सेप्टेबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लेकिन बेहतर यही होता है, अब गाइडलाइन तो बहुत लिबरल उनका अप्रोच होती है, तो उसमें बेहतर यही है कि चूंकि बेसलाइन लेवल जिसके बहुत ज्यादा हाई हैं, इस वजह से हम जब तक उसके नॉर्मलाइज नहीं होते, हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव की बजाय बैरियर मेथड को यूज करें। बट सम टाइम देयर इज अ सिचुएशन जिसमें it's quite difficult for the patient to use barrier methods. If the husband is not that much willing for using condoms या barrier methods, कोई भी और नहीं इस्तेमाल हो सकता, वहां पे तो मजबूरी की बात है, but as a first choice it should not be used. चलो जी, अब इसमें लेवल राइज होना शुरू हो गए, तो इसकी पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे थे। yes madam. Madam, I will counsel the madam मैं history क्या अगर ये लेवल दोबारा रेज होना शुरू हो गए तो आपके ज़हन में पहला डायग्नोसिस क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा? Madam, it could be the persistent gestational trophoblastic disease, it could be the choriocarcinoma in invasive mole हो सकता है madam. And the very less likely that is placental site trophoblastic tumors and the epithelioid trophoblastic tumor. So any possibility या कोई भी उसका जो वेरिएंट है जिसमें ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू परसिस्ट करेगा या कोरियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जी या मैडम, नया ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू बन जाएगा, लाइक इन न्यू प्रेगनेंसी। अगर हमने उसको कॉन्ट्रासेप्शन कही हुई है एंड शी इज इफेक्टिवली यूजिंग इट, एक्सक्लूसिवली एंड इफेक्टिवली यूजिंग इट, so the probability of new pregnancy will almost be out, but the other possibilities will still be in, and you have to rule out the diagnosis के उसमें अब इसकी क्या possibilities हैं। Now how you will come to the conclusion कि ये persistent trophoblastic ये invasive mole है या trophoblastic neoplasm है या ये choriocarcinoma है, ये आपको कैसे पता चलेगा? just by raised beta ECG level, दोबारा से जो रिकरेंस होगी उसके बीटा ईसीजी लेवल की आफ्टर 2 नॉर्मल रिपोर्ट्स, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कोरियो है या इन्वेसिव मोल है? ये कैसे हमें पता चलेगा? बिकॉज द एक्सटेंट ऑफ डिजीज इज डिफरेंट इन ऑल दीज केसेस एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट। Yes, madam. Madam, in invasive mole, the beta HCG usually thousands तक होता है, इसमें इतना ज़्यादा रेज नहीं होता, because it is due to the invasion of the malignant cells into the myometrium, and it can present after the complete mole with the bleeding and the mass on ultrasound. But usually देखो ब्लीडिंग उसमें ब्लीडिंग तो दोनों में हर केस में होगी, हाँ जी, चाहे इन्वेजिव मोल है, चाहे वो कोरियोकार्सिनोमा है, या वो कोई प्लेसेंटल साइट ट्यूमर है या नोड्यूल है, जो भी है, तो उनमें सारों में ब्लीडिंग तो होगी, एंड स्टिल यू मे नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट कॉजेस। जी मैडम। मैडम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे?
Madam, the choriocarcinoma you usually present with the irregular bleeding and the metastasis to the liver, lung and CNS. And the beta HCG बहुत ज़्यादा होता है और उसमें usually lungs को involve किया होता है. बीटा ICG level will be one lakhs parameter, ठीक है जी. और मैडम कार्सिनोमा में बहुत हाई लेवल्स होंगे एज कंपेयर टू द ऑल अदर थिंग्स लोकलाइज्ड प्रॉब्लम जो ट्रोफोब्लास्टिक जो प्लेसेंटल साइट ट्यूमर है या इन्वेजिव मोल है वो सब लोकलाइज्ड होते हैं उसमें मेटास्टेसिस नहीं होते और उनमें बीटा ICG के लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होते तो इस वजह से ये एक डिफरेंशिएटिंग पैरामीटर होगा सो यू विल अगेन गो बैक टू द इन्वेस्टिगेशंस अल्ट्रासाउंड भी इन्वेस्टिगेशन भी ये सारा कुछ करोगे Now, after doing all these investigations, you reach at a conclusion that this probably could be a case of choriocarcinoma. 3 weeks after the primary evacuation. अब क्या करेंगे? Okay. I will counsel my patient about the diagnosis that she may have a persistent gestational trophoblastic disease. The final, madam, final diagnosis तो कोरियो होगा या इन्वेसिव होएगा वो तो हिस्टोपैथोलॉजी पे होएगा है ना? हिस्टोपैथोलॉजी पे कैसे होगा? और उसके लिए हम फिर क्या करेंगे? नहीं मैडम इसमें तो हमने ट्रीटमेंट कीमो देनी है सक्शन इवैक्यूएशन तो नहीं करनी है सक्शन इवैक्यूएशन तो नहीं करनी है ना तो फिर हम क्या करेंगे हम कौन सी हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे जिससे पता चल जाएगा मैडम दी डायग्नोसिस हिस्ट्री और उसका बीटा ICG पे करके और फिर उसको कीमो की तरफ ले जाएंगे मतलब उसका रिस्क असेस कर लेंगे रिस्क स्कोरिंग कर लेंगे then I will counsel the patient. So everyone agree with that कि हम कोरियोकार्सिनोमा का डायग्नोसिस सिर्फ हम उस पे बनाएंगे उसके बीटा ICG के लेवल्स पे which has start rising again and after excluding a new pregnancy and after ruling out के ये invasive mole नहीं है अल्ट्रासाउंड पे भी बीटा ICG के लेवल्स पे भी ये सारा कुछ करने के बाद मैडम उसमें जो फैक्टर इंक्रीज रिस्क ऑफ कीमो होता है आफ्टर अ मोलर प्रेगनेंसी द यूट्राइन साइज शुड बी मोर देन जेस्टेशनल एज एंड द प्री इवैक्यूएशन बीटा HCG मोर देन 100,000 एंड और OCP तो इसलिए हमने इसको इसका जो रिस्क स्कोर था हमने ऑलरेडी इसको हाई रिस्क में रखा हुआ था कि इसमें ये जा सकती है कोरियोकार्सिनोमा में एंड शी डिड और 3 weeks के बाद she probably developed the choriocarcinoma as decided on the beta HCG levels ठीक है जी ठीक है and now without doing sampling क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी पहले ये होता था कि ये कोरियोकार्सिनोमा का डायग्नोसिस एक्सक्लूसिवली ऑन हिस्टोपैथोलॉजी पे बनता था where there are sheets and sheets of the cells no villus structure ठीक है उसमें ये एक डिफरेंशिएटिंग बल्कि इसकी एक कंफर्मेशन फीचर होती थी ऑन हिस्टोपैथोलॉजी लेकिन अब जो गाइडलाइंस के मुताबिक आप इसका डायग्नोसिस सिर्फ इस चीज पे भी बना सकते हैं कि इनिशियली ये मोलर था हाई रिस्क मोलर प्रेगनेंसी थी और अब बीटा ICG लेवल रेस हो गए तो उसमें ये प्रोबेबली इट्स कोरियोकार्सिनोमा अब कोरियोकार्सिनोमा में जो आपने कीमोथेरेपी देनी है वो कौन देगा और क्या कीमोथेरेपी आप देंगे और कैसे देंगे उसके प्री रिक्विजिट्स वगैरह क्या हैं और आप पेशेंट के आपको apart from the new ultrasound and beta ICG fresh beta ICG report what else you need now for the possible diagnosis of choriocarcinoma आपने बताया कि कोरियो में मेटास्टेसिस भी हो सकते हैं जी मैडम आई नीड एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन एंड फॉर द स्टेटस उसमें मैं लिवर और किडनीज को भी देखूंगी एंड RFTs LFTs एंड चेस्ट एक्सरे मेटास्टेसिस के लिए और मैडम अल्ट्रासाउंड पे मैं साइज ऑफ ट्यूमर देखूंगी नंबर ऑफ मेटास्टेसिस देखूंगी एंड साइट ऑफ मेटास्टेसिस देखूंगी रिस्क आपने इवैल्यूएट कर लिया और उसमें मेटास्टेसिस नहीं है सपोज नाउ देयर आर नो मेटास्टेसिस आउटसाइड बट द बीटा HCG levels are 200,000 एंड इसके बेस के ऊपर आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसको कौन सी कीमोथेरेपी देनी है एंड हु विल गिव इट मैडम
मैडम इसकी मैं दोबारा से अब ऑलरेडी तो मैंने किया था वो हाई रिस्क था, अब इसकी मैं दोबारा बिफोर गोइंग टू कीमोथेरेपी मैं इसकी दोबारा से रिस्क असेसमेंट करूंगी बिकॉज किन केसेस में आप सिंगल एजेंट देते हो और किन केसेस में आप मल्टीपल एजेंट देते हैं? Madam, a patient who is having the risk score of less than 6 is a low risk patient and she should be given this single agent chemotherapy. The patient having more than 7 should be consigned as a high risk patient and the multi agent chemotherapy should be given to the patient. तो इस पेशेंट को तो हमने इनिशियली हाई रिस्क में डाला था, तो क्या उससे इफेक्ट होगा टाइप ऑफ कीमोथेरेपी या अभी हमने नए सिरे से स्कोर करना पड़ेगा? पहली स्कोरिंग केस के बाद अब नई स्कोरिंग की जरूरत है कि नहीं है? मैडम देखिए उस वक्त तो वैक्यूएशन होगी ना, तो अब मैं बीटा एचसीजी अभी भी 2 पहली lakhs स्कोरिंग थी कि इसमें कितने को चांसेस हैं टू कन्वर्ट इनटू कोरियोकार्सिनोमा। अब की स्कोरिंग इसलिए जरूरत है कि हमने डिसाइड करनी है कीमोथेरेपी। हाँ जी, हाँ जी, तो इस वजह से हम इसको नए सिरे से स्कोर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलो जी आगे चलो। मैडम अगर इसकी कोई मेटास्टेसिस नहीं है और जो एवैक्यूएशन का इंटरवल है वो लेस देन 4 है, तो ये 4 स्कोर होएगा। इट विल बी अ लो रिस्क पेशेंट। ये 3 वीक्स के बाद ही हो गया जी, ठीक है। हेलो जी 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 हेलो, हाँ जी डॉक्टर, फिर इसमें हम जो इंसिडेंट प्रेगनेंसी लेंगे वो मोलार के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे ना? इसमें जो रिस्क स्कोरिंग में एंटीसीडेंट प्रेगनेंसी का वो होगा, वो हम इस वक्त मोलार लेंगे और ड्यूरेशन भी जो है ये 3 वीक्स का लेंगे। हाँ 3 वीक्स वाला लेंगे, क्योंकि वो जो इनिशियल स्कोरिंग थी दैट वाज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क ऑफ कन्वर्शन इनटू कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है जी मैडम, जी मैडम। चलो जी आगे। Madam, she is a low risk patient, and I will discuss the need of the chemotherapy to treat the disease, and I will counsel about the possible side effects of the chemotherapy, and I will do the complete blood count, LFTs, RFTs, and the beta HCG report, and I will in liaison with the oncologist, I will start the single agent chemotherapy. In the single agent chemotherapy, I will counsel my patient there is 100% cure rate with the with this chemotherapy. In a single agent chemotherapy, we used to give inject methotrexate on day 1, 3, and 5 and 7, and alternate with the calcium folic acid on calcium folic acid। calcium madam, folic acid क्या चीज है? नहीं मैडम, फॉलिक कैल्शियम फॉलिनेट लिखा हुआ है उधर शॉज में एक्चुअली। फोलिनिक एसिड, हाँ चलो फोलिनिक एसिड, आप सिंपल सा फोलिनिक एसिड बोल दें वो भी काफी है। Okay, and we used to give the folic acid। वो उसको देने की क्या जरूरत पड़ती है? why folic acid is given? Madam, because the methotrexate has certain side effects, myelosuppression और serositis कर देती है mucosal ulcers, तो folic acid basically folic acid जो होता है ना, ये एलोपेशिया कम करता है और mucosal ulcers। तो folic acid हम किसी और कीमोथेरेपी के साथ क्यों नहीं देते? why with methotrexate only? मैडम ये एंटीफोलेट ड्रग होती है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही फॉलिक एसिड को एंटागोनाइज करना होता है। जी मैडम, इसलिए ठीक है, इस वजह से ये हम इसको देते हैं जी। अच्छा फिर मैडम आई विल अगर सपोज मेथोट्रेक्सेट को इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता बट यू हैव स्कोर्ड इट एज लो स्कोर, तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव थेरेपी टू बी यूज्ड एज अ सिंगल एजेंट थेरेपी? जो कि हम बाद दफा अगर मेथोट्रेक्सेट अवेलेबल ना हो तो हम एक टॉपिक प्रेगनेंसी में भी करते हैं, हु आर सुटेबल फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट। इसका अल्टरनेट क्या है मेथोट्रेक्सेट का? Madam, the second line is in low risk patient is actinomycin। एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है
वो इसका अल्टरनेटिव होता है, which can sometimes be used even in cases of ectopic pregnancy when methotrexate is not available. कभी कभी इसकी अवेलेबिलिटी का रेयरली इशू आ जाता है। तो ठीक है, अब हमने इसको ये भी दे दी। नाउ व्हाट विल बी द फॉलो अप इन दिस केस एंड आफ्टर हाउ मच टाइम यू विल अलाउ हर टू बिकम प्रेग्नेंट एंड व्हाट कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी यूज्ड इन दैट इंटरवल टाइम पीरियड? Madam, I will the treatment continue till the normalization of the beta HCG and the further 3 cycles to ensure the eradication of the disease. फर्दर 3 साइकिल्स क्या मतलब इसका? मैडम जब बीटा HCG नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद भी 3 साइकिल्स आपने देने होते हैं, यानी कि 6 वीक्स तक आपने कीमोथेरेपी देनी है इंश्योर करने के लिए कि कंप्लीट एरेडिकेशन हो गई हुई है। मैडम ये ड्यू हर्ट्स में लिखा हुआ है। तो इसके बाद जो देन आई विल काउंसल माय पेशेंट टू हैव बैरियर मेथड। एक मिनट, इफ यू हैव गिवन अ कंप्लीट कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी, सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी हम इसमें दे रहे हैं, तो उसके बाद तो आपने इसके फॉलो अप करने हैं बीटा ईसीजी लेवल्स, ठीक है? तो बीटा ईसीजी लेवल अगर नॉर्मली नीचे जा रहे हैं तो व्हाई यू नीड टू रिपीट कीमोथेरेपी इन दैट केस? 3 कोर्सेज फिर भी उसमें क्यों देने हैं? इसमें अगर आप ये बात करोगे तो आपके पास एक फिगर होनी चाहिए कि इतने % केसेस हैं कि जिसमें अगर हम सिंगल कोर्स देंगे और उसके लेवल नॉर्मली जा भी रहे हैं नीचे एंड स्टिल देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ रिकरेंस। फिर ऐसे ये जुबान की बात नहीं होती कि इसमें चांसेस होते हैं या नहीं होते, वो उसको फिर फिगर के साथ आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। जी ठीक है मैडम। तो पोस्ट कीमोथेरेपी अब आपने इसका फॉलो अप मुझे बताना है। Madam, I will counsel my patient to have a barrier method of the contraception for 1 year after the chemotherapy and वो तो कॉन्ट्रासेप्शन होगी ना, हम बीटा ईसीजी के फॉलो अप की बात कर रहे हैं। Okay, madam, after the chemotherapy, the follow-up should be in the first 6 months after chemotherapy, the weekly 2 weekly beta HCG, then the next first 6 months weekly और next उससे 6 months जो होते हैं उसमें 2 weekly करते हैं मैडम। फर्स्ट 6 मंथ आप वीकली कराओगे? मरीज तो पागल हो जाएगा वीकली करा करा के बीटा HCG। मैडम ये ना उधर वीकली फॉर 6 मंथ। हाँ जी। ये कितने सैंपल बन जाते हैं? मैडम ये 20 टिल 3 लेवल्स आर नॉर्मल, उसके बाद जी फिर उसके बाद मैडम 6 वीक्स तक फिर वीकली और 3 लेवल जब नॉर्मल आ गए आफ्टर डूइंग वीकली एसेस फॉर बीटा ईसीजी, तो उसके बाद तो आपका वीकली की जरूरत रहती भी नहीं है क्योंकि 3 लेवल आपके नॉर्मल आ गए, तो फिर हमने उसको वीकली नहीं कराना। फिर उसके बाद हमने नॉर्मलाइजेशन के बाद कम से कम उसको हम मंथली कराएंगे फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथली फॉर 6 मंथ्स, फिर उसके बाद 6 मंथली फॉर 1 ईयर। तो दिस विल बेसिकली विल बी अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years फॉलो अप कम से कम। उसके बाद ईयरली करवाएंगे फॉर लाइफ लॉन्ग, क्योंकि कभी भी किसी वक्त रिकरेंस हो सकती है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे वीकली फोर्टनाइटली का थोड़ा सा वो चल रहा होता है, प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल भी ये डिफरेंट होता है, लेकिन जनरल जो इसकी हैं एसओपीज वो इस तरह से ये हो रहे होते हैं। अब इसके बाद जो आपने इसको कॉन्ट्रासेप्शन भी अलाउ कर दी, रादर यू हैव टू एम्फसाइज द पेशेंट दैट शी शुड नॉट बिकम प्रेग्नेंट 1 year आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द बीटा HCG लेवल्स, और बल्कि उसका जो कीमोथेरेपी स्टॉप होने के बाद, ठीक है? तो ये उसमें जनरली आप इसमें बताते हो। नाउ इन ड्यूरिंग आफ्टर द फर्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी, अब ये आगे मजीद इसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद कीमोथेरेपी हमने इसको दे दी, 2 years की कॉन्ट्रासेप्शन भी इसने कर ली, नाउ शी हैज बिकम प्रेग्नेंट अगेन, तो उसमें कोई फॉलो अप की हमें जरूरत होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Yes, madam. In the next pregnancy, I will advise my patient to confirm the pregnancy in next pregnancy with an ultrasound at 10 weeks of gestation.
that is the 2 months of her gestation, to ensure the single intrauterine normal pregnancy. And ठीक है, क्योंकि अगर कीमोथेरेपी मिली हो तो आपको फॉलो अप करने की जरूरत है। अगर कीमोथेरेपी नहीं मिली फर्स्ट मोलर के बाद तो फिर उसमें जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट द लेटेस्ट गाइडलाइंस है कि इसमें अगर आपने कीमोथेरेपी दी पहले तो फिर उसमें जरूरत है उसको फॉलो अप करने की इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, और अगर कीमोथेरेपी नहीं दी तो फिर उसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आफ्टर डिलीवरी भी जरूरत नहीं है अगर कीमोथेरेपी नहीं मिली। तो कीमोथेरेपी मिली थी तो फिर आफ्टर डिलीवरी भी हम इसको फॉलो अप करेंगे। तो ये इसका आंसर है। तो इसके साथ फिर हम इसको एंड करते हैं। कोई और किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। हेलो जी जी डॉक्टर, जब इवैक्यूएशन हमने की लास्ट मोलार कंप्लीट मोल की, तो उसके बाद फर्स्ट सैंपल हम 1 वीक के बाद करवाएंगे बीटा ICG का या 3 डेज के बाद करवाएंगे? नहीं, इसको 1 वीक के बाद करवाना चाहिए क्योंकि इतना टाइम तो लगता है। हम जितना फ्रीक्वेंटली करवाएंगे इतनी जल्दी हम बीटा ICG का डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। सो इट शुड बी 1 वीक आफ्टर द इवैक्यूएशन। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी कन्वर्शन टू कोरियो नहीं होती कि जिसके बारे में हम इसको हर 2-3 दिन के बाद करवाएं। This has to be followed in cases of ectopic pregnancy where there are high chances of rupture. तो उन केसेस में तो हम करवाते हैं, मोलर में हमने 1 हफ्ते के बाद ही करवाना है। ठीक है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। सवाल जब मैं पूछने लगी तो